and gentlemen, the next person on stage, of course, the most awaited moment is here, the keynote speech. Well, we will certainly have the managing committee member, Mr. Shiraz Pasha, who will do the introduction. But from what I've been taking inspiration from this ma'am, I'd like to leave you two lines dedicated to Ziaullah Sharif Sahab. वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, तवज्जो दीजिएगा, वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की. To introduce our keynote speaker, may I request the managing committee member of IICCB, Mr. Shiraz Pasha, to please do the honors. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Everyone, a warm welcome and a very good evening. On behalf of IICCB, it is a great honor for me to introduce a well-known personality and a very important guest. He is our keynote speaker of the day. He is an elite builder, developer, a visionary, and a philanthropist. His esteemed company believes in change. They make difference and they deliver your dreams. As they do business, they create financial, social, cultural, and spiritual wealth. The wealth they create has a potential to make a great difference in lives of individuals, families, and communities. It is all about building nation and seeking a welfare of communities. Over the years, this group has a vision of transforming dreams into reality with a flair of taking challenges and capability to stand with commitment and making a difference of lives of needy, underprivileged, and rural folks of this, with a spirit of service to humanity. With this entire introduction, thank you, Abbas, for giving a wonderful words, and I'm sure you're all are waiting to hear from him and take away a lot of learnings tonight on the topic economic trends post-pandemic. So, ladies and gentlemen, please welcome Mr. Ziaullah Sharif, Chairman of IBC Company. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मोअज़्ज़िज़ सामईन, मैं एक मैसेज ऑफ लाइफ से अपनी बात शुरू करता हूँ. मोहब्बत की नज़र अहले वफा की शान पैदा कर. मोहब्बत की नज़र अहले वफा की शान पैदा कर. बुलंदी और पस्ती की ज़रा पहचान पैदा कर. दमागो दिल की अक्सर क़ुव्वतें पिन्हा रहीं अब तक. दमागो दिल की अक्सर क़ुव्वतें पिन्हा रहीं अब तक. कोई उनके उभरने का भी आप सामान पैदा कर. न हो माहौल से मायूस, न हो माहौल से मायूस. दुनिया खुद बना अपनी. दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर. मज़ा है मरने जीने का इन्हीं ख़तरों के दामन में. मज़ा है मरने जीने का इन्हीं ख़तरों के दामन में. नई बिजली, नई आंधी, नए तूफान पैदा कर. न दिल टूटे, न दिल टूटे, न दामन ज़ब्त गम का हाथ से छूटे. वो पत्थर का जिगर, वो ज़िंदगी में जान पैदा कर. ये सब तुझसे अगर मुमकिन न हो ए महवी नादा, तो अपनी मौत का फिर शौक से सामान पैदा कर. Ladies and gentlemen, I am a student of learning. I cannot give any keynote speech to you. I am still learning. Learning is never-ending process. The secret of my success, I will tell you. What I have undergone, what you should also do is, you must respect your parents.
पेरेंट्स, हर माँ जो है बच्चों के लिए दुआ करती है, चाहे वो बच्चा कैसा भी हो। माँ की मोहब्बत जो है कॉमन है हर बच्चे के लिए, लेकिन बाप की दुआ जो है मखसूस है, सेलेक्टिव है। बाप को इज्जत की निगाह से देखना जो है काबे को देखने के बराबर है। जैसा माँ के कदमों के नीचे जन्नत बोलते हैं, बाप को इज्जत की निगाह से देखना काबे को देखने के बराबर है। दीज आर द फंडामेंटल्स ऑफ सक्सेस, आई एम टेलिंग यू। वैसे तो लोग पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करते हैं, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ जो है उनकी ज़िंदगी में नहीं होती। इसीलिए अल्लाह ताला की रहमत भी जो है इनके ऊपर नहीं होती। मैं ऐसे बेवकूफ़ फैसले किया हूँ ज़िंदगी में, कोई दूसरा होता तो जो है ख़त्म हो गया रहता। सिर्फ अच्छी नीयत से गलत फैसले भी अगर हो गए हों, लेकिन नीयत अच्छी है, तो अल्लाह ताला उन गलत फैसलों को जो है बेहतरीन फैसलों में कन्वर्ट कर दिया है। वो असा अन तकरहु शय्यन वहुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बु शय्यन वहुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु आलमु अंतुम ला तालमून। हम समझते हैं कि ये अगर हासिल हो गया, ये पोजीशन मिल गया तो हमारे लिए खुशहाली है, हम अच्छे हो जाएंगे। अल्लाह ताला बोलते हैं कि तुमको पता नहीं कौन सी चीज़ में तुम्हारी अच्छाई है। मैं दे के भी आजमाता हूँ, ले के भी आजमाता हूँ। आई केम टू दिस बिजनेस बाय एक्सीडेंट, not by choice, believe me. I was a student of engineering in Hassan, Malnad College of Engineering. Mechanical engineering was my portfolio. It so happened one day, I was going to the college, I saw a board on the bungalow. That bungalow belonged to the Spencer's chairman, Zalar Irani, bungalow for sale. It so happened that day I had a machine design class. See Allah, how Allah Ta'ala brings to you. I saw the board, the phone number was there. I took down the number. I selected a corner table, machine design, so that the teacher should not see me. I have drawn that site, 300 by 300 site, with all four sides road. I made so many sites, 30 by 40, 40 by 60, 50 by 80. In 3 hours time, I made up my mind what I have to do. That 3 hours gave me a direction of my life. I phoned up, I talked to that Spencer chairman who was in the Mount Road Connemara Hotel. He gave me time, I went there. I asked him, how much you want for that bungalow, sir? He said, 2 lakhs of rupees. This is 1965, I'm telling you. 2 lakhs of rupees was big money those days. What offer have you got, sir? He said, I have got 60,000 rupees offer. He wanted 2 lakhs, he had an offer of 60,000. He asked me, how much are you giving? I will double the offer, sir, 1,20,000, but on 2 conditions. You must give me 1 year's time and permission to make sites and sell. He saw me for 1 minute and said yes. I gave a check of 5,000 rupees to him. He gave a letter to me, State Bank of Manager, please hand over the keys to Mr. Sharif. This never happens like that, you know. With a post-dated check of 5,000 rupees, a 2 lakhs of rupees bungalow has been sold to me for 1,20,000 rupees. Permissions are given to me to make sites and sell. That was the beginning of my business, believe me. If you have good intentions, Allah will open up horizons for you. There is nothing to teach in this. It's very simple, common sense. You must have good niyat and decide how much you are going to give in the cause of Allah. That opens up a further chapter. You make Allah as your partner. Whatever you make, give a share to him. Continuously you will be getting. हालांकि देने के बाद की नियत है तो अल्लाह ताला की, 1 को 10, 1 को 70,
100-700 गुना, 700 की भी हद नहीं। मेरे मामले में तो 700 की भी हद नहीं है, सच बोल रहा हूं मैं जो है शर्त है सो देने के बाद की अल्लाह की, मैं जो है लेके दिया हूं सो, पहले ले लिया हूं मैं, फिर उसमें से दिया हूं सो मैं। बहुत से लोग जो है जिंदगी में सक्सेसफुल हो जाते हैं, दे अचीव मनी, दे फेम, रेस्पेक्ट, एवरीथिंग, बट इट हैज टू बी पास्ड ऑन टू अदर्स। शेयर करने से जो है दौलत बढ़ती है। एक ही चीज की गारंटी है, वलाइन शकर तुम लाजिदनकुम, तुम अगर शुक्र करोगे तो हम और ज्यादा देंगे। ये गारंटीड वर्ड है अल्लाह की तरफ से। शुक्र करना सीखना, शुक्र करोगे तो और ज्यादा मिलेगा। नेमत के बढ़ने में गारंटी जो है शुक्र, हर हालत में अल्लाह का शुक्र करना। कोई आपको सुन के ताज्जुब होगा, बेंगलुरु जैसे शहर में वी लॉन्च वन प्रोजेक्ट इन 94 कॉल्ड डायमंड डिस्ट्रिक्ट, 780 पर 6 रुपये पर स्क्वायर फुट। No builder in the country on a location like that, with a specification like that, can sell property for 786 rupees a square foot, जिसकी आज कीमत जो है 8,000 रुपया स्क्वायर फुट है। Everybody said he is not going to build this project because it's impossible to build for 786 rupees on a location with a specification like this. सिर्फ नीयत जो है सिंसियर थी, जो अल्लाह को पसंद आ गई, अल्लाह के नाम से बेचना चाहता था मैं। मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है 2 मिलियन स्क्वायर फीट का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के नाम से बेचेंगे करके। सच बोल रहा हूं मैं, आई मेड 500 crores of rupees in that. Nobody can believe this. आप पूछेंगे कैसे बना ये कीमत में बेच के कैसे बन सकता है? ये इम्पॉसिबल चीज है ये। लेकिन इम्पॉसिबल चीज को अल्लाह ताला पॉसिबल करने के लिए कुछ टाइम नहीं लगता। तू बहरो बर पर खादिर है, आसान मेरी मुश्किल कर दे। तू बहरो बर पर खादिर है, आसान मेरी मुश्किल कर दे। साहिल की तरफ कश्ती न सही, कश्ती की तरफ साहिल कर दे। We retained 7 lakh square feet in that project. We didn't sell 100%. I normally don't sell my corporate buildings at all. We retain. अच्छे ख्यालात देते हैं अल्लाह ताला, और कुछ करने का नहीं है। अल्लाह का दामन पकड़ लो, ऐसे ऐसे आइडियाज आते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आप यही सक्सेस का सीक्रेट है, और क्या भी नहीं है इसके अंदर। पूरी काबिलियत, कनेक्शन, दौलत, ये सब जो है सेकेंडरी है। अल्लाह चाहे तो जो है बगैर ये सब चीज़ों के दे सकते हैं। एक दिन महाराजा ट्रावनकूर की प्रॉपर्टी 1986 में खरीदने गया मैं कनिंगहैम रोड में, तो वो महाराजा बोले, मिस्टर शरीफ, देयर आर 2 more buyers sitting in the adjoining room. Is this your final offer? वो समझा शायद मैं ऑफर चेंज करूंगा मेरा करके। People were sitting there. I told him, Your Highness, if God has decided to give this to me, nobody on earth can change it. If He has decided not to give it to me, nobody on earth can get me this. Believe me, वो खड़के मेरा हाथ पकड़ लिया and said, the property is yours. तो यकीन होना चाहिए अल्लाह की ज़ात पे, देने वाली ज़ात अल्लाह की है, कोई किसी को कुछ भी नहीं दे सकता। बहुत से पेरेंट्स जो है बच्चों के लिए बगैर तालीम दिए के बेहिसाब दौलत छोड़ के जाते हैं, वो फ़ायदा नहीं है। वो अच्छी तालीम दीजिए, काबिल बनाइए, दौलत छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। औलाद अगर अच्छी नहीं है, काबिल नहीं है, तो दौलत छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। दोनों सूरतों में दौलत जमा करने की ज़रूरत नहीं है। असल दौलत जो है एजुकेशन, अखलाक। मैं आपको सारी रात शेर सुना सकता हूँ, इतने शेर याद है मुझे, और एक एक शेर जो है माशाअल्लाह 2-2 घंटे की तकरीर हो सकती है, ऐसे शेर है। मैं
ज्यादा वक्त लिए बगैर जो है, जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, जो लोग हिम्मत से आगे बढ़ना चाहते हैं, पहले अच्छी नीयत रखें। नीयत में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग मिलने से पहले नीयत अच्छी करते हैं, मिल गया बाद नीयत चेंज हो जाती है। एक सवाल आया है कि लड़कियां अच्छा पढ़ रही हैं, उसके मुकाबले में लड़कों को जो है मैचिंग रिश्ते नहीं मिल रहे करके। ये बहुत वैलिड सवाल है। ये कुछ ज़रूरी नहीं कि लड़का भी पढ़ा हुआ हो, लड़का अच्छा बिजनेस करे, खूब पैसे कमाए, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं आज फील्ड इतनी ओपन है। अर्न वेल्थ, for nothing is so potent to humiliate a proud enemy, but wealth not shared with others is like the wasted life of a spinster. खूब कमाइए। वो अगर पढ़े लिखे हों तो आप जो है उसको मैच करने के लिए बिजनेस में आइए, कमाइए, शेयर कीजिए, लोगों को भी दीजिए। अल्लाह ताला जो है बेहिसाब दरवाजे खोलेगा। मैं इस ऑर्गेनाइजर्स का बहुत मशकूर हूँ। मुझे कुछ पता नहीं था, वो आके रिक्वेस्ट किए कि आपके बात करने से बहुत से लोगों को हेल्प होगा करके। हेल्प करने के लिए मैं हमेशा आगे हूँ। मेरे से जो भी कौम की खिदमत हो सकती है, इंशाअल्लाह, न सिर्फ मेरी दौलत, मेरी जान तक अल्लाह की राह में हाजिर है। एनी टाइम anybody needs any help, any advice, inshallah, I am there to help you all. Thank you very much for this. Thank you very much. So we are indeed enlightened, Ziaullah Sharif Saab. But a lot of youngsters from here would like to know, you've been an inspiration to many of us present here. Who is the inspiration to the young Ziaullah Sharif? When you were a 25-year-old, who was your inspiration, sir? My inspiration, see, बचपने से मुझे मेरे जहन में दो ख्याल आते। बचपने से, या अल्लाह मेरी दुनिया की ज़िंदगी शानदार बनाओ अल्लाह। मैं अल्लाह से मांगता, मेरी दुनिया की ज़िंदगी शानदार बनाओ अल्लाह। और दूसरा, आखिरत में मेरे साथ अच्छा सलूक करो अल्लाह। ये दो ख्याल मुझे बचपने से आते। मैं जो भी मांगा हूं अल्लाह से मांगा हूं। और एक सीक्रेट सुनाता हूं मैं आपको। कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट लेने से पहले मैं सुबह की नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह मुझे पता नहीं ये चीज़ में फ़ायदा है, नुकसान है, तू बेहतर जानता है। अगर फ़ायदा है सुबह को मेरे दिल में ख्याल जमा दे, नहीं है मेरे दिल से ख्याल निकाल दे अल्लाह। तो जब भी माशाल्लाह, मैं आज तक जो है सच बोल रहा हूं, मैं माशाल्लाह, ये अल्लाह का फजल है, मैं जिंदगी में नुकसान नहीं देखा। बहुत कम लोग हैं जो, क्योंकि मैं फैसला अल्लाह पे छोड़ देता हूं। काम हुआ अल्लाह का शुक्र, नहीं हुआ अल्लाह का डबल शुक्र, क्या भलाई थी कि नहीं हुआ। बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह। And finally, what is the secret of success? If most of the youngsters would like to know. सक्सेस के लिए देखे भाई, माँ बाप की दुआ पहले होना चाहिए, अल्लाह का फजल होना चाहिए, नीयत अच्छी होनी चाहिए, कमाने के बाद जो है दूसरों के साथ शेयर करने का ख्याल होना चाहिए। उसके बगैर अल्लाह ताला भी चुपके देते नहीं। अल्लाह को इल्म है कौन क्या करेगा करके। बहुत से लोग मिलने के बाद नीयत चेंज हो जाती है, मिलने के बाद नीयत चेंज हो जाती है। ये नहीं होना चाहिए। बुजुर्गों की दुआ, माँ बाप की दुआ खासकर, फिर अल्लाह के ऊपर भरोसा और अच्छी नीयत और मेहनत करना चाहिए। अब देखिए बिजनेस में भी इतने एंगल्स हैं, मैं कुछ कह नहीं सकता। हमारी मेडिकल कॉलेज है बीजापुर में, तो हुबली से या बेलगाम से जब
जब फ्लाइट में जाके वहाँ से कार से हम जाते तो ड्राइवर बोलता, साहब यहाँ चाय बड़ी अच्छी मिलती है, आप पीना चाहो तो मैं खड़ा हूँगा अगर। चलो भी पियेंगे। इतनी बेहतरीन चाय मैं क्या बताऊं आपको, रोजाना 40,000 रुपए की चाय बेचता है वो आदमी, वो होटल वाला, सिर्फ चाय 40,000 रुपए। तो बिजनेस के इतने अपॉर्चुनिटीज हैं। अब चाय में क्या है बेखासियत, सब बनाते हैं लेकिन कोई दिल दिमाग डाल के बनाता है। दिल लगना चाहिए कोई चीज में, पकवान में जब दिल लगता है तो कितना टेस्टी होता है, जरा सोचिए जरा। तो हर काम में दिल लगना चाहिए, जिस काम में दिल नहीं लगता वो बिजनेस भी नहीं करना चाहिए। Thank you very much, sir. We are truly honored to have your presence. If I could request you, Ziya Sahab, to come here, we'd like to hand over a token of appreciation to you. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Afsar Khadri and Mr. Iqbal Sharif to please do the honors to our keynote speaker this evening, Mr. Ziaullah Sharif Sahab. And one thing I've noticed, whenever I've met stalwarts, luminaries such as you, they've all been so simple and down to earth. जैसे आप शायरी के शौकीन हैं, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना मुर्दे की पहचान होती है। Ladies and gentlemen, the legendary Shakhsiyat, Mrs. Ziaullah Sharif, deserves a rousing round of applause. Thank you very much. Indeed, your keynote address has enlightened all of us present here. Yes, he deserves a standing ovation, ladies and gentlemen. Ziaullah Sharif Sahab. I'd like to say, ladies and gentlemen, I request all of you to please take your seats. We'd also like to request